Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is part 2 of Skills English Class 1, Lesson 1. Yesterday we uploaded a video about part 1 in which I shared 6 days of lesson planning for this unit. If you haven't seen that video, please go and check it out. Now today, as I told you yesterday, that this unit requires at least 2 weeks of teaching. Now when I said 2 weeks, I'm assuming कि आपका स्कूल 6 दिन के लिए है. अगर वो 6 दिन के लिए नहीं है, 5 दिन के लिए है, तो easily you can use 10 days, 10 lesson plans and keep the other 2 days safe with you. वो कभी भी आप रिविजन के दौरान उन 2 दिनों की एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं. So today this is day 7 for me, day 7 of this unit, Caterpillar's Voice. And day 7 में model reading, if मैंने इसके साथ लिखा हुआ, if you feel that it's necessary that you provide another reading, another model reading of the unit, go ahead, feel free to do it. It depends on your class dynamics कि आपको समझते हैं अगर ज़रूरत है, वरना छोटी सी समरी आपने इस स्टोरी की दोबारा से बतानी है और उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे जो कि है स्टोरी मैप. स्टोरी मैप एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है and it requires a lot of feedback from the children and it's a comprehension activity जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से इस कहानी की समझ आई है कि नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले से इसको बना के इस पूरे खाके को अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आप ये सब बोर्ड पे करने वाले हैं. बट यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस एट वंस. आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स और वो जो जो जवाब देंगे उनके मुताबिक आप स्टेप बाय स्टेप ये पूरा मैप जो है बनाएंगे. सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ Caterpillar's Voice. And we are talking about caterpillar. So you can ask questions. What did the caterpillar do? So the caterpillar hid in his house. Students will give you a response and you will write. What did he do after hiding? He used a big voice. What did he say in the big voice? He said, "I'm an elephant eater." Although, what was he? Was he very big? Was he very small? What type of body did he have? So he was tiny. But don't do this part. This we will do in the end. Then what happened when the caterpillar said, "I'm an elephant eater"? The hare got scared. When he got scared, what did he do? He called his friends. Why did he call his friends? He called his friends for help. Now, who were the friends? The friends were the elephant, the rhino, the jackal. What happened to the friends? The elephant got frightened, the rhino got frightened, and the jackal got frightened too. So, who helped the hare? A little frog offered to help. What did the frog do to help? The frog shouted in an even bigger voice, bigger than the caterpillar's voice, and said, "I eat elephant eaters." So, what happened? The caterpillar got scared and the caterpillar ran away. Yahan se. So I eat elephant eaters and the caterpillar ran away. This is a full map. This summarizes the story. The whole story is on this. So do it with your class. Ask the students. उनकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी, सवाल जवाब भी उनको आएगा और कहानी भी उनके दिमाग में रिफ़्रेश हो जाएगी. बट नॉट ऑल एट वंस, स्टेप्स में आपने करते जाना है, साथ साथ मैप बनाते जाना है. अगर आपके पास इसके बाद भी टाइम बचता है, इफ़ यू फील कि अभी टाइम है, तो आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एनी वन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी या कोई फेवरेट सीन जो उन्हें कहानी में पसंद है वो उसको ड्रॉ करें. आस्क योर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम द स्टोरी. प्लेन शीट ऑफ पेपर दें और उसके ऊपर वो काम करें. दिस इज़ योर डे 7. अगेन इट्स अ कॉम्प्रीहेंशन एक्टिविटी. डे 8 की तरफ आते हैं. हमने फोनिक्स की प्रैक्टिस उनको करवाई थी सिर्फ इन अल्फाज के साथ. तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि दीज आर द कॉन्सोनेंट्स. ऑल ऑफ दीज आर कॉन्सोनेंट्स और शॉर्ट साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट्स की. नाउ यू हैव टू बिल्ड देयर वोकैबुलरी ऑल्सो. और सिर्फ इन्हीं अल्फाज तक हमें उन्हें महदूद नहीं रखना. इसके साथ हमें उन्हें कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस भी करानी है. सो वी विल बी डूइंग एन एक्टिविटी कॉल्ड द वर्ड वेब्स. वर्ड वेब्स.
हम वर्ड वेब्स की आज एक्टिविटी उनको कराएंगे। और कैसे कराएंगे? इन द प्रीवियस वीक द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन दिस। तो उन्होंने यहाँ पे ख लिखा हुआ है, यहाँ पे ब लिखा हुआ है, र लिखा हुआ है, फ लिखा हुआ है. What you have to do is you take the ख from this, write it on the board, write ख cat, and then ask the students what other words do they think start with a ख, and उसमें से choose करके आप लिखते जाएं. I just wrote cake and car. You can choose whatever your students tell you, as long as it is correct and it starts with a k. Same you repeat with b. जैसे b for bucket तो यहाँ पे है, लेकिन b for ball and b for bed. And you do this oral practice with all these consonants, with all the consonants. तो सब के लिए आपने ये बनाकर बोर्ड के ऊपर लगाने हैं और लिखते चले जाना है, और बच्चे इसकी ओरल प्रैक्टिस करेंगे. नॉट ओनली उनके फोनिक्स रिवाइज हो रहे हैं, बल्कि उनको साथ साथ वर्ड बिल्डिंग भी हो रही है, उनकी वोकेबलरी भी बढ़ रही है. दिस इज़ टोटली एन ओरल एक्सरसाइज, नो नीड टू डू इट ऑन द कॉपीज़. नाउ I'm sure that you will have time after that, so you can use these words for sentences. Choose any 3 or 4 words, write them on the board, ask the children to use them in the sentences. ख्याल रखिएगा सारे this is वाले ना हों, थोड़े थोड़े से पैटर्न्स आपने सिखाने हैं. जैसे this is a green frog, this is my watch, the monkey is dancing, the goat is hungry, दिस इज़ अ पिंक रैबिट. वो कुछ ना कुछ बीच में और डालें, सिर्फ दिस इज़ वाले सेंटेंसेस ना हो. एंड देन चूज़ एनी between 6 to 8 words from these and give them for dictation. लेकिन ये डिक्टेशन आपने लेनी नहीं है, आपने सिर्फ लिखवा देना है डायरीज पे कि इन लफ्ज़ों की डिक्टेशन होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, राइट? बट द वर्ड लिस्ट फॉर डिक्टेशन. दिस इज़ द एंड ऑफ डे 8. नाउ वी कम टू डे 9. आपने वर्ड लिस्ट को रिवाइज करना है बच्चों के साथ. जो भी आपने 6 to 8 वर्ड्स इसमें से दिए हैं, उनकी आपने स्पेलिंग ड्रिल करानी है बच्चों को, ताकि उनके दिमाग में वो ताज़ा रहें और उनको वो ड्रिल करें, स्पेलिंग्स उनको याद हो जाएं. देन डू द रीड अलॉन्ग जो हमने पिछले हफ्ते किया था, आप पढ़ रहे हैं और बच्चे आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं, द रीड अलॉन्ग एक्टिविटी. एंड नाउ कम्स टाइम फॉर इंडिविजुअल रीडिंग. अब इंडिविजुअल रीडिंग में प्लीज़ चूज़ वॉल्टियर्स. ये ऐसे बच्चे जो कॉन्फिडेंट हैं और जो समझते हैं कि वो अभी रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने किसी से इंडिविजुअल रीडिंग नहीं करवाई, तो जो वॉलंटरली इसमें हिस्सा लेगा, इट शुड बी नॉन थ्रेटनिंग. एंड प्लीज़ रिमेंबर वन अदर थिंग, कि ये नहीं कि सिर्फ एक एक लाइन बच्चे पढ़ते जाए, एक पढ़ रहा है फिर दूसरी लाइन पढ़ रहा है. नेचुरली जहाँ पे कहानी का थोड़ा सा, जहाँ पे वो रुकती है, जैसे यहाँ पे रुक जाए, then the second part is this, then the third part is this, till the end. तो नेचुरली जहाँ पे जुमले एक नेचुरली ख़त्म होते हैं लॉजिकली, वहाँ तक आपने रीडिंग करवानी है. 3 to 6 स्टूडेंट्स कैन रीड ऑन दिस डे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्ड लिस्ट भी रिवाइज कराई है, रीड अलॉन्ग भी कराया है. तो 3 to 6 स्टूडेंट्स कैन डू द इंडिविजुअल रीडिंग टुडे, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग देम टू रीड इंडिपेंडेंटली. नाउ कम्स डे 10. जो आपने वर्ड लिस्ट दी थी, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई थी. टुडे इज़ द डे टू टेक डिक्टेशन. वेरी स्लोली एंड क्लियरली से द वर्ड्स एंड द स्टूडेंट्स विल राइट. जो भी आपने 6 से 8 लफ्ज़ यहाँ से चुने थे, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 6 to 8. और साथ साथ गिव देम लिटिल क्लूज़, थोड़ी थोड़ी फीडबैक भी साथ बताते जाएं. हेल्प देम टू राइट द वर्ड्स करेक्टली. And if time permits, you can do some more individual reading with the students. दोबारा से कुछ और बच्चों को जिन्होंने कल नहीं किया, आज वो individual reading कर सकते हैं. Now day 11, capital letters की ये exercise जो है, ये तो book के अंदर थी. Go over it once again. capital letters क्या हैं और कहाँ use होते हैं. sentence को start करते वक्त हम use करते हैं, but give 5 sentences of your own. ये वाले नहीं, 5 जुमले आपने बोर्ड पे लिखने हैं. एंड आस्क द चिल्ड्रन, इस तरह लिखने हैं, उनके शुरू में कैपिटल लेटर नहीं लगाना. एंड आस्क द स्टूडेंट टू री राइट द सेंटेंसेस, करेक्ट देम वट एवर द मिस्टेक दे फील इज़ इन द सेंटेंस. सिर्फ एक ही मिस्टेक होनी चाहिए कैपिटल लेटर्स की. सो यू आर गोइंग ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स अगेन. नाउ इज़ द लास्ट डे.
डे 12 एंड हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था कि बच्चे इसको ड्रामेटाइज भी करेंगे. सो इट इज़ फन डे फॉर ड्रामेटाइजेशन ऑफ द स्टोरी. सारे करेक्टर्स चूज़ कर लें, बच्चों को करेक्टर्स के नाम दे दें, थोड़ी सी रिहर्सल करें एंड टेल देम टू परफॉर्म. स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा होगा एंड इट्स अ फन एक्टिविटी. एज आई सेड, इफ़ योर स्कूल इज़ फॉर 5 days, तो इसमें से 2 एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल में ड्रामेटाइजेशन or maybe one another activity you can choose. I would say dramatization जो bird webs हैं ये आप संभाल के रख लें या आप रिविज़न के दौरान करा लें. The rest you can do with the students. So this is how a unit should be taught, जिसमें आपने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि you are teaching grammar, phonics, reading, word usage and interesting activities. So inshallah tomorrow we will do class 2 lesson 1. Thank you so much for today. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.